can pick and make parallel questionnaires. That's why it is being tested with our own faculty first. Thanks for the feedback as well. And we are starting the second day. I think group number 5, some people have extra said. All only group 5 is sitting here. You are in which group, sir? Group 2, please come here. It's group wise you have to sit. Those who are not in group 5, please get up from your place. Group 2 is in this front. Group 4, please come here, ma'am. The practicals today. After this session, there is group, right? 5 groups are there now. Each group will record one minute audio and you're going to record 3 minutes video in the studio practice. So we will be doing the recording practicals on Thursday. So today onwards, after they give you inputs, now the group will start thinking what kind of program you will record. And this 2 days is for you to think and prepare yourself. On Thursday afternoon, we will be doing the practical of this 2 session. And afternoon, we will be having, there is a little swap in the schedule. Today, we will be having creating animations as the demonstration. And in the afternoon, second practicals, as a group, you will create one animated content. Okay, and today as part of the assignment there will be only one submission. Today is the least number of assignments, so only one assignment, that too also a group work which you are going to do as animation has to be submitted in the learning management system. So this is the plan for the whole day. So we have now with us Dr. Gypsy Malhotra, who is assistant professor in the Department of Media Production Division. And also we have Ms. Vimlesh Chaudhary. She is working with the audio recording. Sorry, I exactly forgot your designation. She is a radio producer and she is working with also with the media production division. So we have people who are actually working on development of audio and video. Those are going to take you the sessions. Many of you, most of the old faculty and teachers are oriented on using the studio. We have done 5 days training in each RIEs also, but most of the people who have joined today are new joinees who have joined the council later after we finish the training. So this 2 session is like an introductory session for you, because all the 4 studios in all the RIs, or sorry, all the 5 studios, we need to really use it completely. Maybe you are using it already, but theoretically and also practically, what is the procedure that CIT follows and what is to be followed in RIs will be told by the faculty so that it helps us to understand. Over to you. Thank you, Angel ma'am, for giving us this place to present our views about development of audio resources. Welcome everyone here. I am Dr. Gypsy Malhotra and we have Vimlesh, who is a radio producer. So all the practical applications she is already doing, I will be telling as a teacher's point of view to you why audio resources, why we are studying and why we are going to create this audio resources. So initially, Gypsy ma'am will take the session after the time. So I will take little bit theoretical part and she will give you the practical applications and how they are editing the audios and all. So majorly, what should be our objective? Starting with the audio resources. Maximum people, you must be loving the music. I think music is a thing. Without that music, we cannot start moving in our life. That really initiates our mind and all. So think about any music which you love to hear and think about the music which you don't love to hear. Okay. So sometimes if we talk about our parents and we start playing the rap songs and all, they say, "Isko band kar do, wo purana wala mera Rafi laga do." So what is the difference? It's not that rap songs are not good or Rafi is not good. It's the pleasing voice which we like. So that is what audio resources. अब हम इस सेशन में बात करेंगे कि एजुकेशन के साथ रिलेटेड कैसे ऑडियो रिसोर्सेज. सो ऑडियो रिसोर्सेज के लिए मेजर पॉइंट इज व्हाट इज द वॉइस क्वालिटी. कैसी क्वालिटी में तुम प्रेजेंट कर रहे हो, हाउ द प्रेजेंटर इज प्रेजेंटिंग दैट थिंग. सो लेट्स टेक इन वन एग्जांपल. आई जस्ट वांट टू रीड ऑन द लाइंस. It is inevitably the human voice which connects the audience over the radio. Is it fine? Was it the right pitch of mine? No. And so if you want to catch your presenter, you have to be a little with a full of pauses, full of some punctuations has to be taken. So let's change the line again. So it is in every.
It is the human voice which touches the mind of the students. If the teacher is teaching like that, if the presenter is presenting the thing, so audio plays a very important part. How the communicator is presenting, in which language the communicator is presenting, and how the presenter is going to give the pauses and give the voice modulations while giving the content. So first of all, before starting the session, everyone knows about radio. I think everyone knows. So what is the difference between audio and radio? सबने ऑडियो सुना है, सबने रेडियो सुना है. डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी. रेडियो में वन ऑफ द पॉइंट. नॉइस रहता है रेडियो में तो रेडियो में noises, disturbances because it's a little satellite version. Yes, this can be. उसमें रेडियो वेव्स होते हैं हमारे वॉइस में कोई जो फिजिकल वेव्स होते हैं Audio is recorded. Audio is recorded. Radio is live. also recorded and broadcast Radio works. Yes. Audio Yes, the is- point. I will just not repeat the point. I will repeat at the last. Yes. Audio is in radio. The voice is sent in the form of waves from one place to another, and Ah. that we can listen. Audio means we can listen anything. We need not to have a transmission of the wave sound waves. So transmission and radio waves, that is majorly how it's transmitted from one place to another. That is the radio. Anyone else who want can to add? As if sir has given the right answer. I will Radio just- could be one of the medium to present the audio. Radio can be one of the medium to present. So as sir has said, can you repeat your answer? Just a minute. Radio is recorded and broadcast, and audio is we record and listen. So what is the thing is, audio and radio is both the same thing. Only difference is whichever the audio is broadcasted, that comes in the radio. Okay, so it's not a different thing. Any talk can be broadcasted. So audio and radio are just as same similar versions, similar MP4, MP3 files and all. But the thing is, when it's broadcasted, it's called radio version. Okay, so radio waves and all, yes, it is transmitted. Any audio can be transmitted. अब हमें education में audio क्यों चाहिए? Let's move into our national education policy because that is the base of our whole education system. Let's start moving. So in my session, I will be talking about critical importance and impact of educational audios content in modern learning. Then I will be talking about principles. That is, what is the fundamental principles for developing this audio thing? Types of formats. You must have heard about radio jockeys. Some students are talking about podcasts. Some lecture series are there. Sometimes we talk about panel discussions. We listen on the radio and all. So कौन से different formats हैं? हम उसके बारे में बात करेंगे. Production stages. एवरीथिंग विच इज प्रोड्यूस हैज सम स्टेजेस. ऐसा नहीं है कि बस रिकॉर्ड करो और उसको हम लाइव दे देते हैं, जब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जब यूट्यूब आजकल पॉडकास्ट बन जाते हैं. इट्स ऑलवेज एडिटेड एंड ऑल विच विमलेश मैम विल बी गिविंग यू लिटिल डिटेल. आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस. देयर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अब ऑडियोज बन गए, उसको क्लास में कैसे यूज करना है? व्हाई वी आर क्रिएटिंग सो मेनी ऑडियो? डू आवर लिसनर वांट्स दैट ऑडियो और नॉट? दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन आवर session. So integration of NEP and Digital India Vision. NEP has given us a very beautiful Indian vision talking about clause 23.6 content development. E-content to be systematically developed by all states. I again repeat, they have specifically mentioned, they have given every mother language also important. So audio हम भी create कर सकते हैं CIP वाले. But the thing is, we want everyone to create so that your regional perspective, your regional accent. अब हम किसी की आवाज सुन रहे होते हैं और उसमें हमें अपना रीजन का कोई टच मिले, we go and talk to that. We get the person attached. और ये तुम वही रीजन से हो. We start talking. हमारा एक accent होता है particular region का. So that is what the NEP has said. So let's prepare the audio resources as per for all India level, with for all states and NCRT bodies. Then uploading it on Diksha platform. So we have a Diksha platform where we want that you all experts to create the audio content. Let it be filtered, let it be edited and all, and then uploaded on the Diksha. Another thing is inclusive education. We all think that every child should have the right to study. So the one who cannot see, audio is the best supportive resource.
So हम कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन से पढ़ाएंगे? I will give you one example. In one of the workshop I told some resource persons कि एक ऑडियो बनाओ अपने कंटेंट को. उन्होंने कैसे बनाया मैं tell you. So today I'm going to tell you about different factors which are affecting the rusting material. These are given below. So there is no below in audio. So whenever you make the audio for the educational perspective, there are some specific words which you have to take care कि कैसा वो सुन रहे हैं. They are making the images. They don't have something below and above. So ऐसी छोटी छोटी चीजें we will be discussing about it with you. That is the Digital India program actively promotes the equitable and inclusive education through technology driven solution. So this is how NEP says. So why e-content? क्यों लाना है? जब हमारी books में हम NCERT ने बना दिया है, there are different books with that. It gives us flexibility, access. हमने rural area की बात करते हैं. कभी-कभी हम कहते हैं वहाँ network नहीं आ रहा. कभी हम कहते हैं वहाँ books नहीं पहुँच रही, physical copies. So radio is the thing which can reach to even the tribal areas, even the rural. No less network, as I was saying that satellite transactions, FM rays. These are the rays which can reach to every corner. So flexibility, access, and updates, and that this is much easier in the audio thing. Then is progress tracking. We can track the progresses. There are some LMS where the audio is read, then we can track that whether how much percentage they have listened the audio and how many answers they were about to give. So this tracking can be easily done with the audio also, as हम videos में भी करते हैं. Then is multiple learning styles. So there are different learning styles. किसी बच्चे को book पढ़ना पसंद है. आजकल के बच्चों को do you think that they want to read everything from the book? They want to listen. They want to have podcasts. They want to either see the reels and all with the small visuals and all. So multiple learning styles as per the child, as per its her liking and all, they can present the material. हमारा main मकसद क्या है? उनको knowledge पहुंचाना. हमारा main मकसद ये नहीं कि वो किताब से ही पढ़े. So this is the thing. उनको ऐसे point पे questions curious छोड़ना कि वो भी जाके दूसरी book को पढ़े. So this is what we are there as a teacher, as a facilitator in this digital world. Then is activity self-paced learning. घर में as in the classes it's normally seen that अगर बच्चा 2 बार doubts पूछ ले तो टीचर बता देते हैं. तीसरी बार पूछ ले टीचर कहते हैं रुक जाओ बताता हूँ ये क्लास में बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है. It's again fourth fifth time रुक जाओ बेटा तुम तो सारा दिन डाउट्स पूछते रहते हो. So this is normal. Teacher has to teach. In India the population is so high, 50 students 40 students are there. So यहाँ self paced learning. ऑडियो में क्या होता है अगर टीचर अपना रिकॉर्ड करके दे देता है which can reach to the so it is easy for the child to listen and then see from the book ये बोला था मैम. So this is also which is really helping the students of this era and are using that audio. Now I'm giving you one task. Think about that you have to send to your any student. Think about your pedagogy. 30 seconds में तुम्हें उनको ये बताना है अपने टॉपिक का कुछ एक मेजर पार्ट. ओके इफ आई टेक साइंस मुझे बताना है मैटर कौन कौन से टाइप के होता है. 30 सेकंड और 30 सेकंड का ऑडियो कैसे क्रिएट करोगे? जस्ट टेल मी वन वर्जन. 30 सेकेंड्स में तुम्हें उन बच्चे को कोई एग्जाम देने जाना है और वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा मैटर के बारे में बता दो. अपने कोई भी टॉपिक पर ले सकते हो. हाउ विल यू टेल? प्रेफरली नोट्स बना के दोगे उसको 30 सेकेंड्स में? कैसे बताओगे? इधर आप बताता हूँ. ऐसे ऐसे टीचर्स नॉर्मली बता देते हैं. सो अगर बच्चा आपके पास नहीं है और वो ऐसी जगह पे है तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? दैट इज द ऑडियो. इट्स द इजीएस्ट सोल्यूशन. सो ऑडियो इज द थिंग विच इज फ्लेक्सिबल. इट्स ईजी. किसी को सोचना नहीं पड़ता. अगर किसी को समझाना है एंड दे जस्ट रिकॉर्ड. आजकल तो हमारे व्हाट्सएप मोबाइल रिकॉर्डिंग दे कैन सी एट देयर ओन फेस. सो दैट इज ऑल्सो इट हैज बिकम ईजियर. दैट इज द रीजन ऑडियो हैज अगेन कम इन डिमांड. अदरवाइज ऑडियो थिंग्स वर रिड्यूसिंग. द रेडियो बाय करना थोड़ा कम हो गया था. अब आ गया फिर वापस पॉडकास्ट बिकॉज इट इज easily constructed. टाइम कम लगता है वीडियो से. सो दैट इज द थिंग. इट्स प्रेफरेबल. Inclusive and equity. We are talking every time about inclusions and equity for all the students. So audio is one which is dealing with the slow learners, can deal with the slow learners, can deal with the persons who can't see. So that is the thing, the audio is benefit. So that is our significance of e-content where I'm majorly focusing on the audio. Role of audio resources as we were discussing. It's inclusive and accessible. We have discussed there will be no barrier for the learners even if they can't see. Then is the auditory learning support. It's a support. कभी सेशंस जो आजकल अगर इन आर टीचर वर्ल्ड ऑल्सो हमें भी बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं. हमें क्या बोला जाता है कि वीडियो तुम ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन. तो प्रेफर क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अटेंडिंग सीरियसली द कॉन्फ्रेंसेज. और हम कैमरा नहीं ऑन कर सकते
पर हम सुनते रहते हैं कि कुछ अच्छा पॉइंट होगा, चलो अब वो अच्छा पॉइंट कैसे आता है व्हेन वी टॉक अबाउट कीवर्ड्स कि ये स्पेशल वर्ड्स है, दिस वी हैव टू कॉन्शियस। तो हमारा ऑडिटरी जो भी हम ऑडियो बनाएंगे वो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक दैट द चाइल्ड, अदर पर्सन, द लर्नर शुड लव टू लिसन दैट कि अब कुछ स्पेशल बताया जाएगा। देन इज एनहांस्ड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ओके, देयर वाज, मैं एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ तुम्हें, नॉट इन अ वेरी गुड वॉइस, वो विमलेश कर पाएगी, आई एम नॉट अ वेरी खुद ऑरेटर नहीं हूँ, सिर्फ आई नो द पॉइंट्स एंड स्टोरी बता रही हूँ। देयर वाज वन टीचर इन विलेज, शी वाज थिंकिंग कि चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते उसने सोचा कि बच्चों ने पढ़ा नहीं, बच्चों को वो टफ लगने लगी। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कुछ तो दिमाग में होगा, ट्राइंगल्स एंड ऑल, एंगल्स एंड ऑल। तो कुछ बच्चे तो अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। उसने एक दिमाग में आइडिया आया कि चलो इनको ना पार्क में ले जाता हूँ। पार्क गया, अपने पीएन को बोला 3-4 काइट्स लेके आओ विद थ्रेड्स एंड ऑल। वो 3-4 काइट्स लेके आया और ग्रुप में डिवाइड कर दिया 4-5 बच्चों को उसने, 1 2 3 4 5, और एक एक काइट दे दी। किसी को बोला थ्रेड का ध्यान रख, कोई किसी को बोला काइट को बांध ले। ओके, इज हिंदी ओके? नो इश्यूज ना? तो स्टूडेंट्स बड़े मजे से वो काइट फ्लाइंग करने लगे और भूल गए ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स चल रहा था। मूवमेंट उनकी काइट हवा को छूने लगी, उन्होंने टीचर ने बोला नाउ इट हैज रीच टू द सेकंड बिल्डिंग टॉवर। जैसे वो छोटी 2 बिल्डिंग्स होते हैं स्कूल्स में, ऐसा नहीं कि उन्होंने जहां से स्टार्ट करा दूसरी बिल्डिंग से वो कहता है अब रुक जाओ, अब सब अपनी काइट्स उड़ानी बंद कर दो। तो देन ही ब्रॉट दैट इंची टेप्स, बड़े बड़े वो जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज है, क्योंकि वो इंची टेप लेकर उन्होंने कहा डिस्टेंस मेजर करो। दैट वाज द बेस। ओके, हाइट वाज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हिच द पर्संस वर नोइंग। अब फाइंड आउट करो एंगल। तो वो उस टीचर ने एक लकड़ी के प्रोटेक्टर्स मंगवाए, उसका एंगल मेजर करो। वो सब स्टूडेंट्स ने करा, कहते हैं ये है ट्रिग्नोमेट्री भाई, कितनी हाइट में तुम्हारी काइट फ्लाई करी, कितना है। सो कैन यू टेल मी कैसा था वो स्कूल, क्या पिक्चर आया आपके माइंड में? स्कूल का ग्राउंड छोटा तो नहीं था, काइट उड़ रही थी बच्चे। सो थिंक अबाउट। So what I want to say is how we catch the audience with a different story. I was telling you some theoretical part of the audio resources, making them switch to the story. I can also sing, but I don't have that good voice. Okay, so we can switch our learners' attention by converting story to audio to the lecture series and all. That is the easiest part for the audio. That is called its flexible audio learning. We can switch our mind. I saw in the जब मैं थ्योरी बोल रही थी ना, 1-2 लोगों ने यॉन कर दिया होता, चाहे सुबह सुबह का टाइम था ना, तो चलो स्टोरी सुनाना शुरू। Now they are fine. I will not point out which participants were there. So that is the role of audio resources in e-content. Multi-age engagement. Audio resources is not limited. हम poems लगाते हैं, rhymes लगाते हैं. That's majorly part of the primary thing. Audio resources हर age group को bind करता है। आजकल हमारे दादू लोग ने एक WhatsApp यूनिवर्सिटी खोली हुई है। अगर आप जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हमारे घर में, वो जैसे ही घर जाओ, तुम्हें पता है ये खाने से ना ये वाली चीज हो जाती है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सिंपली लिसनिंग टू द थिंग्स एंड फॉलोइंग। सो everyone gets connect with the audio. Music is the one which at every age we love. Rhyming से start करते हैं, गजलों तक पहुंचते हैं। तो it's really, I am a पंजाबी person, हमें तो जहाँ म्यूजिक देता है हम नाचना शुरू कर देते हैं, और हमारे आगे अगर क्लासिकल लगा दो हम वही सो जाते हैं। सो दैट इज डिफरेंट थिंग कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। किसी को क्लासिकल जगाएगा, किसी को उससे सिर दर्द होगा पंजाबी सॉन्ग। दैट इज द डिफरेंट थिंग ऑफ द ऑडियो। दैट इज द आई से ब्यूटी ऑफ द ऑडियो थिंग्स। So audio versus radio, I already told you, audio is similar to radio, only thing which is broadcaster, that is called radio version. Last year, listeners worldwide streamed to be 112 billion minutes of educational podcast. तो इतने podcast चले हैं, इतने बच्चे podcast में हो गए, उसका benefit क्या हो रहा है? हमारे बच्चे at least reels से हट रहे हैं and they are listening to things. अब what is the task of the teachers is ऐसा ही content बनाओ कि वो सुनना चाहें. I always say history can do, language can be learned, listening skills gets developed. ओके, लोग कहते हैं साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। मैं ये बोल रही हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जितनी भी हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, देन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस कैन बी डन बाय द ऑडियो। कैसे? ऑडियो में क्या है कि हम ड्रॉ करके नहीं दे रहे, स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे ये स्कूल था, रेड कलर का स्कूल था, उसका ग्राउंड इतना बड़ा था, हम दिखा नहीं रहे हैं। वी जस्ट टॉकिंग, लेट देम इमेजिन। सोचने तो दो कितने कमरे थे, कितना बड़ा ग्राउंड था, कितने बच्चे थे, और टीचर कैसा था, मोटा था, पतला था, पता लगा तुम्हें स्टोरी में? टीचर भागने वाला था, स्पोर्ट्स वाला था, ये मैं तुम्हें बता दूं। सो दिस इज आवर इमेजिनेशन।
कितना बच्चा आउट ऑफ जो प्रोसा गया उससे सीख रहा है, दैट इज डेवलप्स हिज क्रिएटिव स्किल्स, डेवलप हिज 21st सेंचुरी स्किल्स. सो ऑडियो तुम्हारी 21st सेंचुरी स्किल्स को रियली एनहांस करता है, बिकॉज यू डोंट give the plate already decorated. You just give the knowledge and let the child think about more of that. So that is the audio. So play enough audio to play non-stop for our two one. So बहुत सारे audios हमारे create हो चुके हैं. Elements of audio. I told you. अब कैसा टीचर बोल रहा है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, दैट इज जिसकी अच्छी वॉइस क्वालिटी पीपल यूज टू लिसन. कोई ऑडियो पॉडकास्ट सुनता है हमारे यहाँ? कोई नहीं सुनता. कोई अच्छा पॉडकास्ट क्या सीखा? हाँ, रैंडमली किस पे रुकते हैं हमारे रील्स, किस पे रुकती हैं? जिसकी आवाज हमें पसंद आती है, जिसका कंटेंट हमें पसंद आता है, यही है वॉइस क्वालिटी. द कंटेंट, साउंड इफेक्ट. अगर बहुत अच्छा वॉइस कंटेंट दे रहा है और पीछे से गंदा सा म्यूजिक आ रहा है, टक 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 टक, वुड वी लिसन? वी विल जस्ट पास ऑन टू द अनदर लिस्ट. सो there are different aspects to create the educational audio. What is the aspects is, first is the voice quality. It should be emotional. The clarity should be there. And अब टीचर स्टोरी तो नहीं बता रही, एक साइंस का प्रोजेक्ट बता रही है कि आर्किमिडीज इज टेस्टिंग अबाउट फ्लोटिंग थिंग्स एंड सिंकिंग थिंग. और टीचर बात कैसे करेगी? So Archimedes came into the bathtub and then is it appropriate? No. So other hand, if the teacher is talking about Shakespeare, so there was an Antony, he just dropped the knife. So that suits. So according to your subject, according to your content which you are going to teach at that time, you have to change your voice quality. Okay, so that is the voice. Voice should be full of emotion, clarity, educational message should be there. ये नहीं कि हम उसमें गाने डाल दें उसमें कोई वैल्यूज ना हो. सो दैट इज द रीजन जो सॉन्ग्स हमें बहुत पुराने तक याद रहते हैं, वी गेट अटैच. थिंग इज देयर लिरिक्स इज स्ट्रॉन्ग, और आइदर देयर लिरिक्स गेट कनेक्टेड विद our lifestyle or our some incidents in our life, so that gets connected to us. Then is about music. म्यूजिक क्रिएट्स एटमॉस्फेयर. अब अगर मैं कोई स्टेशन का सीन बता रही हूँ और मैं पीछे म्यूजिक डाल दूँ छुक 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 छुक, तो पीपल विल थिंक, वो एक इमेज बननी शुरू हो जाती है कि इंजन चल रहा था और स्टोरी साथ साथ चल रही थी. सो दिस इज द थिंग्स विच एस्पेक्ट्स विमलेश विल गिव यू मोर विद ओरिजिनलिटी एंड ऑल. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. देन इज द साउंड इफेक्ट्स. रियलिज्म साउंड इफेक्ट्स. साउंड इफेक्ट्स कैसे? जो क्लूज दे रहे. अगर मैं कुछ रेन की बात कर रही हूँ और उसकी छत चो रही है और पानी के ड्रॉप की आवाज देना शुरू कर दो, टप टप टप, एंड देन माई स्टोरी बिगिंस. यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि कहीं तो लीकेज हो रही है, और बाद में बताऊंगी उसकी एक जगह पे पानी भर गया तो बच्चा खुद ही बोल देता मैम उसके कहीं लीकेज सी आवाज आ रही थी. सो दैट इज द ऑडियो. सो हमने बच्चे को क्या एस्पेक्ट दे दिया? स्टोरी दे दी, वॉइस, हाउ टू फोनेटिक्स दे दिया, हाउ टू स्पीक. देन वी हैव गिवन हिम द स्पेस इन हिज माइंड वेयर ही कैन थिंक कमरा कैसा है. हमने नहीं बताया कमरा कैसा था. ओके, वो सोच सकता है कुछ छत चोरी है, वो सोच सकता है कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है. तो हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म उसको दे दिया ऑडियो के लिए. देन इज साइलेंस एंड पॉजेस. कई बार मूवीज में एक डायलॉग आता है कि मेरा पेशेंट कैसा है, और डॉक्टर बाहर निकल रहा होता है, याद आ रही है वो स्टोरी? मेरा में, और अगर डॉक्टर चुप हो जाए 2 मिनट चुप और नीचे आंखें कर ले, तो क्या मतलब? चाहे उसने बोला हो मैं सीजन भूल गया था. सो इज इट दैट पॉज शोज, pause also gives a lot of emotions. So whenever you will be giving a lecture, give them the time to think. तो जब ऑडियो बनाओगे उसमें कुछ pauses डालना. ऐसा नहीं कि तुम्हें ही सब आंसर्स देने हैं. Give the pauses, let the child think, फिर अपना आंसर भी दे दो. तो एक pause gives the time for the child to think. So that pauses are also very necessary. Then is mixing. Mixing the audio elements with some different music and all, some different voices and all. So जो documentaries में normally किया जाता है, तो mixing से एक ध्यान जो continuous thing से थोड़ा सा boring हो जाता है, तो mixing करने से बच्चा switch करता है अपना mind कभी इधर कभी उधर, तो it remains attentive. So educational audio के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? First is the voice, then is the music, then is the sound effect, silence and pauses, and mixing. So this is what is the aspect needed while creating the educational audios. Characteristics of good audio. I told you intimate and personal medium. मुझे अगर किसी ने पंजाबी में पढ़ाना है, because I'm from Punjab, sorry, I'm move into again back to that. अगर मुझे किसी टीचर ने पढ़ाना है तो मुझे लगता है कि जिसका उसकी इंग्लिश पंजाबी एक्सेंट में होने तो मैं जल्दी कैच कर जाती हूँ. Similar is the case if the person is from South India and the South Indian teacher is taking English, that person will more get attached. So that is there because we remember those accent and that really triggers our mind and all.
सो इंटीमेट एंड पर्सनल मीडियम, वन टू वन कनेक्शन हो जाता है जब वॉइस क्वालिटी अच्छी लगती है. हमारा जो पॉडकास्ट जो हम देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेम दैट इज स्पेसिफिकली बिकॉज आई डोंट वांट टू promote any podcast. So thing is, when we start listening one podcast, the reason is we get attached with the words which he used, content, as well as the voice. That voice quality gives us ease and make us know about those things. Then is the portable and flexible. It's very portable, very anywhere, everywhere, anytime you can see the audio. Audio में ये नहीं है कि हमें अच्छा नेटवर्क चाहिए, रेडियो कहीं भी मिल जाता है हमें. So that is the portability. Theater of mind. I told you. I gave you one scene of the school where the teacher was teaching about trigonometry. So that is my theater of mind. हाँ, मैंने एक theater create कर दिया. एक teacher है, वो उसके बच्चे लेके गया है, and there is a school, एक playground है. उस playground में पानी तो नहीं गिरा होगा क्योंकि बच्चे भाग के खेल रहे हैं. So theater of mind. It creates a theater picture. I don't have to I don't have to call the characters and all. I don't have to bring the material जो video में हमें करना पड़ता. So it's little cost effective also. Okay. Other than teaching the 21st century skills, it's cost effective. That is inclusive learning. So different learning preferences, visual and specifically for the visually impaired, we are using this audio sessions, self-paced review. अपनी ऑडियो को हम दोबारा दोबारा जब सुनते हैं तो हमें समझ आ जाता है कहाँ गलती है. एक बार तो हमें लगता है बस हम भी बेस्ट करें, बट थिंक देन किसी 5-10 मिनट बाद आके सुन के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वर्ड मीनिंग नहीं दे रहा, जहाँ मेरा एक्सेंट थोड़ा गलत चला गया. सो देयर वी नीड सम एडिटिंग्स एंड ऑल व्हिच विल बी वेरी नाइसली told by Vimlesh. Additional benefits is mobile accessibility. Now in India, everyone, maximum of the, I think 90% have the mobile, so audio can be sent. It's a cost-effective thing. Can be easily. They don't want much network also. So then is the quick distribution. We can easily send through the podcast, through the WhatsApp messages. It can be easily reduce the data requirements. It doesn't require much data. So this is the characteristics of good audio. I told you, whenever something is uploaded or on our YouTube channels or somewhere or podcast channels, it's not just बस audio record करा और चला गया. उसमें बहुत सारे process होते हैं. First is pre-production. Pre-production में think about any topic of your subject. I will ask from any one of you. सोचो कौन से टॉपिक पे तुम ऑडियो, बस इतना ही बताना मुझे, किस टॉपिक पे तुम ऑडियो बनाना चाहते हो. Think about any topic. I give you 30 seconds to think. Just topic. Emotion. Emotions. Fine. Do we need this? Because I think everyone is speaking. Introduction to the concept of point. Point. Fine. Concept of periodic table. Periodic. Fine. Nice. So we have three of the things: point, periodic table, and emotions. Emotion is the thing which I think generally everyone. Can anyone give a little explanation that how they think that emotions के लिए आप बता सकते हैं? What is something in your mind that how will you create? That's why I am not able to figure it out that if the emotion is something which you can see, like the facial expression Right. and the emotion you are feeling it, internal feeling also. So when we are explaining with our voices, with our recording, how it's going to reflect with the actual implementation. That's a good point. So how the emotions will be visible in the audio resources. So music. So music. कैसा होता है हमारा मूड कैसा कर देता है. Little we get involved with the point that how's the mood, it's going sadness, and then we start linking कि हमारे घर में जैसे mothers पे the हमारे senior citizen दादू दूदू जो भी songs आते हैं we get attached to that. Okay, so emotions is that when audio is played, मैंने बताया कि audio में हमारे पीछे sound, that is the background what is kept, and how we set up the scene. कैसे सीन सेट करा, दरवाजा आया, जब अंधेरी आई, एंड देन वी स्टार्ट इमोशन. सो दिस इज हाउ वी सेट अप द फीलिंग्स. अगर बच्चा कोई डिप्रेस्ड है या बच्चा डरा हुआ है तो वो अपनी आवाज से, उसकी आवाज की वॉइस क्वालिटी कैसे मोल्ड करते हैं, वही मैंने बोला. शी इज द वन हु इज एक्सपर्ट, वी नो हाउ टू क्रिएट. तो मैं कंटेंट तक लिमिट कर पाऊंगी. शी विल गिव यू दैट वॉइस मॉड्यूलेशन. हाँ इंग्लिश में. Yes, Fine. sure. She will be giving you that. Then was the periodic table. Science. Somebody told me.
Yes. So periodic table. इसके लिए भी it's a long list of our elements of the metals, non-metals and all. So बहुत सारे गाने बने हुए हैं, बहुत सारे म्यूजिक बने हुए हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करके जो यूज करते हैं कहानी में परोते हुए, so it comes with a periodic table. So what I want to say is pre-production stage में selecting a good topic for the audio. Every content cannot be in the audio. सो फर्स्ट सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें बच्चे को कंटेंट पढ़ाना है कि हमें सिर्फ छोटा सा पार्ट उसका एप्लीकेशन ही बताना है. सो वी स्टार्ट सिलेक्टिंग कि मुझे इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ाना, उसका सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट बताना. सो दिस इज द प्री प्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर ऑडियो. कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, उस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम, और उस टॉपिक का कितना ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट करना है. सो दैट इज द प्री प्रोडक्शन. इसके लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं. स्क्रिप्ट क्या होता है कि कैसे चलेगा. जैसे आज का मेरा स्क्रिप्ट में बता देती हूँ. सुबह मैं 5 बजे उठूंगी, 5 बजे मैं खाना बनाऊंगी, खाना बनाकर आई विल बी फ्रेशन अप एंड गेट रेडी, टेक माय कार, रीच टू माय ऑफिस एंड देन टेक द सेशन बाय 7. एक पूरा एक मेरा लाइन अप सेशन था कि मुझे कैसे चलना है. सो दिस इज आई एम जस्ट कोटिंग एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ. अब तुम्हें चैप्टर पढ़ाना है. लेट्स टेक एक चैप्टर, एक पॉइंट पढ़ाना है. जैसे मैम ने एक टॉपिक बोला, मुझे पॉइंट पढ़ाना है, तो मैं शून्य से स्टार्ट करूंगी. शून्य क्या है? मैं हो सकता है कि मैं उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम से ज्वाइन करवा दूं. शून्य की बात एक स्टार्ट करूँ एंड फिर बच्चा आता है, मम्मा ये शून्य तो मेरी मैम ने भी पढ़ाया था, आप क्या सुन रहे हो मेडिटेशन में. तो वो शून्य की कहानी में वहां से स्टार्ट करके फिर शून्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. सो आई कैन डू विद दैट. पर मेरी स्क्रिप्ट कैसे चलेगी? डू आई हैव टू कनेक्ट विद इंडियन नॉलेज? कि एक बच्चा बहुत छोटा है, मुझे उससे नहीं, इंडियन नॉलेज से नहीं कनेक्ट करना, मुझे डेली लाइफ से ही उसको कनेक्ट करना है. ये आपकी बिंदी भी शून्य है क्या? मतलब it depends upon the which level we are going to teach. It depends upon which subject we are going to deal, and it depends upon कैसा situation है, कितना ऑडियो बनाना है, कितना टाइम लिमिट दिया गया है, और कितना वॉइस मॉड्यूलेशन. इफ आई हैव टू मेक, आई विल मेजरली फोकसिंग ऑन स्विचिंग माय ऑडियो. कभी मैं स्टोरी बताऊंगी, कभी मैं गेम्स खिलाऊंगी, कभी ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ूंगी. आई थिंक विमलेश इज गुड इन ऑडियो क्रिएशन ऑफ वॉइसेस. शी कैन जस्ट चेंज हर वॉइस, शी डजंट हैव टू चेंज द पेडागॉजी. सो तुम्हारे पे तुम्हारा टैलेंट क्या है. सो अपने टैलेंट को यूज करते हुए वी सिलेक्ट फॉर द प्री प्रोडक्शन टाइम में ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम कैसे उसको प्रोसीड करेंगे. देयर इज द प्रोडक्शन. अब तुमने रिकॉर्ड तो कर लिया. एज पर आवर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्ट को पहले डिस्कस किया जाता है, स्क्रिप्ट अप्रूव होती है, एंड देन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग द स्क्रिप्ट. ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट कौन सा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, कौन सा साउंड डालना है, दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड. हाई क्वालिटी वॉइस नरेशन. हर कोई वॉइस नरेट नहीं कर सकता. एवरीवन डजंट है. अब मुझे बोल दिया जाए कि अगर हिंदी पढ़ा दो तो मेरी हिंदी में भी पंजाबी गिरती है. Okay, so I can't do that justice for the work. So voice quality, which person will be suitable, and the dialogue interactions कैसे रखने हैं. अगर मुझे एक स्टोरी बतानी है एक बड़े पर्सन की टीचर और एक प्राइमरी की स्टूडेंट, तो मेरी वॉइस क्वालिटी वैसे चेंज होनी चाहिए. जहाँ मुझे एक बच्चा ढूंढना पड़ेगा और एक बड़ा ढूंढना पड़ेगा, ताकि वो जो वोकल कोच की जो आवाज है, वो पिच जो साउंड है हमारी, वो उससे आ सके. Then is about post production. पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रिसाइज एडिटिंग की जाती है, कुछ मिक्सिंग करी जाती है आवाज की, कुछ गलतियां जो होगी, जैसे कहीं वर्ड में प्रोनाउंसिएशन गलत आ गया, उसको उठा के दूसरे में रख दिया. सो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स which Audacity is the app which she will be telling. So process of educational audio video. I just want to go. No. Principles of effective audio design. अगर कोई तुम्हें कोई कंटेंट पढ़ा रहा है एंड दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट द टेक्निकल वर्ड्स एंड बॉम्बार्डिंग वर्ड्स, जितनी उसको लैंग्वेज आती है और वो उस भारी भरकम वर्ड को बोला, आई डोंट थिंक सो द लर्नर्स विल कनेक्ट. वी हैव टू कम टू द लेवल ऑफ द लर्नर. अब ये नहीं कि 9th-10th के बच्चों के लिए तुम एक प्राइमरी की पॉइंट प्ले करना शुरू कर दो. सो अकॉर्डिंग टू द लेवल वी हैव टू कीप द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर वर्ड्स, हाउ मच क्लियर दे आर, हाउ मच accessible they are. लैंग्वेज अवॉइडिंग द कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड्स हम नहीं यूज करेंगे. Clarity. Clarity comes with the tone, with the pace, how the child talks, and with the crystal clear articulation. अगर आवाज ही क्लियर नहीं है, अगर वर्ड्स ही उच्चारण सही नहीं हो रहा, तो बच्चा उस चीज को जान नहीं पाएगा. Engagement. I told you. Continuous lecture nobody wants to listen. Even in the age of 40s, 50s, जो अब हम भी पहुंच चुके हैं, continuous lecture में हम भी बोर हो जाते हैं. छोड़िए कब से बोल रहे हैं. So thing is we have to switch our pedagogy. Switch our pedagogies with giving the real world example, making them connect, storytelling. जब कोई क्वेश्चन दे दिया, कुछ म्यूजिक डाल दिया, अब listeners please listen that, then I will be asking the question in between. टीचर हमें छोटे होते बोलती थी ना क्लास में, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो हम उस क्वेश्चन को चाहे टीचर अच्छा पढ़ा रही चाहे नहीं पढ़ा रही, हम सुनना शुरू कर देते.
तो सिमिलरली में ऑडियो में कुछ ऐसा क्लिक छोड़ना पड़ेगा कि बच्चा तुम्हारे लास्ट तक ऑडियो तक बंधा रहे. अब कैसे बांधते हो, दैट इज वाउ हाउ यू लर्नर्स विल बी डन. रेलेवेंस डायरेक्टली कनेक्ट टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इधर उधर की बातें करने से अच्छा जो टॉपिक है टॉक टॉक अबाउट दैट. देन इज accessibility. Accessibility is transcripts should be given side by side. Captions can be given with audio. साथ साथ आते रहे तो बच्चे को accessible रहता है. Exploring audio programs. So there are different types of audio programs. One is music programs can be made. लाइव फॉल तो poems बनाओ, rhymes बनाओ, कुछ गजलों की टाइप आप अपने मटेरियल को प्रेजेंट कर सकते हो. स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स फीचर टॉक्स, इंटरव्यूज, डिस्कशंस एंड पोइट्री. न्यूज प्रोग्राम कुछ टॉक्स लगा देते हैं, इंटरव्यूज, रिपोर्टिंग, कमेंट्री ऑफ द क्रिकेट. सिमिलरली द कमेंट्री कैन बी डन अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट गोइंग ऑन ताकि हर कोई मोटिवेट हो. सो दिस टाइप ऑफ कमेंट्रीज कैन बी देयर. Thank you. I have been given a little short time because थोड़ा schedule change हुआ है. Now Vimlesh will be taking it. I hope I haven't bored you. Some practical applications she will be done. Thank you for the listeners. Thank you, Gypsy ma'am, for taking a detailed session about audio. तो नमस्कार सभी को एंड हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सेशन हाउ वी कैन डेवलप ऑडियो इन आवर स्टूडियोज and how we are developing in CIT and CRT audio programs. So, as we already know, what is e-content? E-content can be made in audio also, in video. It can be interactive program. It can be an animation also. It can be simulation. It can be text also. So, whatever we are producing through electronic gadget, whatever we are producing through like mobile, like laptop, like our systems, whatever we are producing through electronic, that is e-content. Next question is radio unpopular? I just wanted to ask you, is radio unpopular? No. Okay. Yes. May I know, sir? Why it is no, sir? Some area. In some areas, it is popular. Okay. In most of the areas, it is popular, and I think FM is the one thing which all mobiles are now having. If you are in a city or in almost urban areas, you Yes. will receive many FM channels, Okay. 91 to 102. Right. As sir already said, we have FM channels, we have different audio podcast channels also. So, in the form of radio, as we want to see like जो old type के जो boxes होते थे, we cannot see that type of boxes. But it is available with us, like in our phones, in our cars also, we have radio. So it is not unpopular. तो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स ऑफ रेडियो. जैसे मैम ने बात की, जिप्सी मैम ने, इट्स मोर इकोनॉमिक. आप इजीली इसको ई कंटेंट, जब वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूस ई कंटेंट, तो आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो लाइक बहुत ज़्यादा नॉट रिक्वायर्ड, बिग स्टूडियोज रिक्वायर्ड नहीं है ऑडियो जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए. तो ये बहुत इकोनॉमिक है. आप मोबाइल के थ्रू आप आराम से ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं. इजीली मूवेबल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप जहाँ जहाँ कार जा रही है आपकी, यू कैन गो विद द रेडियो, यू कैन गो विद द ऑडियो. और जहाँ जहाँ आपके पास मोबाइल है, यू कैन लिसन ऑडियो. सो दिस इज इजीली मूवेबल. नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउज मल्टीटास्किंग. Allows multitasking, like while you are listening radio, while you are listening audio,
आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑडियो एंड रेडियो बोथ, है ना। तो जो हम ऑडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं, एज मैम ऑलरेडी टोल्ड यू, वॉट एवर वी आर ब्रॉडकास्टिंग दैट इज रेडियो, वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग दैट इज ऑडियो। तो ऑडियो में इट्स अलाउज मल्टीटास्किंग। हाउ? लाइक वी कैन लिसन ऑडियो, we can listen radio while we are doing kitchen work, we are doing gardening, we are walking also. So like we are doing multitasking with the radio. और वाइडर रीच की बात की अभी मैम ने, कि जहाँ जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत टफ हैं, जहाँ सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, जहाँ हमारे पास रूरल एरियाज की जैसे बात की जिप्सी मैम ने, कि रूरल एरियाज में सिग्नल्स का इशू रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, वहाँ पे हम इजीली ऑडियो के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। और एक से है आफ्टर द सनरेज, रेडियो वेव्स विच कवर्स द अर्थ मोस्ट। तो जो सनरेज के बाद जो रेडियो वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा कवर करती हैं अर्थ को। इसका मतलब जो हमें अगर ज्यादा एरिया को कवर करना है, ज्यादा हमें अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करना है, अगर हमें लास्ट बच्चे तक पहुंचना है, तो दैट इज द रेडियो ओनली। हम रेडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से वी कैन रीच टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ एनीवेयर। और मोस्ट इफेक्टिव इन नेचुरल कैलामिटीज, जैसे बाढ़ है या कोई भी और भी नेचुरल कैलामिटीज की बात करते हैं, जहाँ सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी रेडियो बहुत पावरफुल रोल में अपना रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं रेडियो की, तो इट्स अलाउज मोर इमेजिनेशन। अब मोर इमेजिनेशन से क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स में आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो। लाइक जो हमारी दादी नानी थी, वो हमें पहले कहानियां सुनाया करती थी। कहानियां लाइक जो उन्होंने जंगल की कहानी सुनाई, शेर की कहानी सुनाई, राजा रानी की कहानियां सुनाई, परियों की कहानियां सुनाई, तो वो हमें अभी तक याद है। क्यों? क्योंकि हम उनको इमेजिन करते थे, हम उनके साथ साथ जीते थे उनको। अभी क्या है कि वी हैव रील्स, रील्स में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है रील्स में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन वी टेंड टू फॉरगेट। व्हाई? क्योंकि वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग द थिंग्स, हम उनको इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम उनको जी नहीं रहे हैं। तो दैट इज द रीजन इट अलाउज मोर इमेजिनेशन ऑल्सो। और अभी क्या है कि वी हैव मोर ऑप्शंस। लाइक अभी मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही हूँ, तो ये स्माइली, एज वी कैन सी, व्हाट इज द कलर ऑफ स्माइली? येलो, क्योंकि वी कैन सी इट इज इन येलो कलर। बट इन ऑडियो वी कैन नॉट सी आर स्माइली, इट कैन बी इन रेड कलर ऑल्सो, इट कैन बी इन ब्लैक कलर ऑल्सो, इट कैन बी इन पिंक कलर ऑल्सो। तो ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो स्माइली है वो किस कलर का होगा। तो ये जो अलाउ करता है आपको, ऑडियो अलाउ करता है। वीडियो में तो आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है, यू कैन सी द स्माइली कलर इन वीडियो, बट इन ऑडियो वी हैव मोर स्कोप ऑफ इमेजिनेशन। नो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि डॉक्टर्स ने स्क्रीन टाइम को लिमिट किया था, क्योंकि जो चिल्ड्रन थे, दे वर डिपेंडेंट ओनली ऑन स्क्रीन, दे वर प्लेइंग ऑन स्क्रीन, दे वर स्टडिंग ऑन स्क्रीन ओनली। तो वहाँ पे स्क्रीन टाइम को अगर आपको अवॉइड करना है, तो ऑडियो इज द बेस्ट मीडियम, एज आई कैन से। और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ब्लाइंड फ्रेंड। ब्लाइंड फ्रेंड से मतलब है कि आई एम टॉकिंग टू द ब्लाइंड फ्रेंड, लाइक दे कैन नॉट सी अस और वी कैन नॉट सी देम ऑल्सो, सो वी आर टॉकिंग टू द ब्लाइंड फ्रेंड। अभी नेक्स्ट मैं टेक्निकल पॉइंट पे जा रही हूँ कि फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम। जनरली हम कहते हैं कि हमने ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूस किया है। व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड? वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑडियो कंटेंट। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो कोई भी कह सकता है वी हैव प्रोड्यूस्ड रेडियो कंटेंट। और अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आई हैव प्रोड्यूस्ड ऑडियो कंटेंट विच कैन बी लिसन्ड। लेकिन यहाँ पे एक ग्रामर है जो फॉर्मेट्स को डिस्क्राइब करती है। लाइक अगर हम कहें आफ्टर कि जैसे मैं रेडियो प्रोड्यूसर हूँ यहाँ पे, और मैं जनरली कहूँ कि मैंने ऑडियो प्रोग्राम बनाया, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट ग्रामर। वहाँ हमें एक टेक्निकल टर्म होता है जो हमें जानना चाहिए कि व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड एक्चुअली।
So now I'm going to talk about formats of radio program. Okay, so first format, as we can see here, radio documentary. अच्छा, रेडियो डॉक्यूमेंट्री कोई बताएगा व्हाट इज रेडियो डॉक्यूमेंट्री? ओके, रेडियो डॉक्यूमेंट्री मीन्स विच इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली. ये फिक्शनल नहीं हो सकता. वी कैन नॉट इमेजिन डॉक्यूमेंट्री इन अ नाइट. It should be based on the facts only. It should be based on the documents only. So while we are producing a audio program for secondary classes, for example, so we should produce like we are producing educational program. Educational mein that is fact, that is based on the facts only. But we are producing for higher classes, so we can produce a radio documentary. अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट में इट कैन बी अ प्रिंट मटेरियल जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ हो. इट कैन बी एन ऑडियो ऑल्सो. इट कैन बी वीडियो, लेटर, डायरीज, टैबलेट्स, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कुछ भी हो सकता है. बट अभी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी वी हैव टू चेक. लाइक इफ समवन इज शेयरिंग some videos, some audios on WhatsApp, is it authentic? We have to check authenticity first. After that only we can take these files, these audios, these videos, diaries in our program. So first thing what is required, it is required for making a radio documentary, authenticity is required. डॉक्यूमेंट्री से ही मिलता जुलता नेक्स्ट फॉर्मेट है डॉक्यू ड्रामा. डॉक्यू ड्रामा अगेन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली, but we can create the situation again. We can recreate the scene. Like I will take the example of Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, सबको पता है. किस दिन हुआ था? वैसाखी का दिन था. तो this is based on the fact. But what we are doing? We are creating the scene again. We are recreating the situation again. तो उसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करनी है? जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब, तो आपको जैसे मैम बार बार कह रही थी, म्यूजिक हैज अ मेन रोल इन ऑडियोज, इन प्रोड्यूसिंग ऑडियो. लाइक इफ वी आर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन जलियांवाला बाग, तो वी हैव टू टेक केयर कि उस टाइम पे जो, अगर इफ वी आर टॉकिंग साउंड इफेक्ट्स, लाइक कि उस टाइम पे कौन सी गन यूज हुई होंगी. AK-47 तो नहीं होगी उस टाइम पे. तो अगर आपको साउंड इफेक्ट भी लगाना है तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, अकॉर्डिंग टू दैट एरा, आपको साउंड इफेक्ट यू हैव टू चूज. लाइक कि 303 आई हैव प्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम ऑन जलियांवाला बाग. तो मैंने उसके लिए क्या किया? रिसर्च की. रिसर्च किस लिए की? ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि उस टाइम पे कौन सी गन यूज हुई थी, कहाँ कैसे डोर क्लोज हुआ था, कितने लोग थे, कितनी दूर से फायर हुआ होगा. तो ये सारी चीजें जब आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी चेक करनी है. तो उस टाइम पे 303 राइफल्स का यूज हुआ, गन्स का यूज हुआ, और पंजाब का म्यूजिक लगाएंगे ऑब्वियस है. वैसाखी वाले दिन का लगाएंगे क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था वो वैसाखी वाले दिन हुआ था. तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मेट्स की बात की. फर्स्ट वन वाज डॉक्यूमेंट्री एंड सेकंड वन इज डॉक्यूड्रामा. बोथ आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली. ये कुछ डिटेल्स हैं, आप देख लीजिएगा इनको बाद में. नेक्स्ट फॉर्मेट इज रेडियो मैगजीन. रेडियो मैगजीन में क्या है कि जैसे एक मैगजीन होती है, स्कूल मैगजीन का एग्जांपल ले सकते हैं कि एज वी आर चेंजिंग आवर पेज, कंटेंट इज आल्सो बीइंग चेंज्ड. जैसे जैसे हम पेज बदलते हैं कंटेंट बदलता जाता है. फर्स्ट में हो सकता है इट कैन बी एन एडिटोरियल पेज, नेक्स्ट कैन बी अ स्टोरी, नेक्स्ट कैन बी अ पोएम ऑल्सो. तो डिफरेंट फॉर्मेट्स का कॉम्बिनेशन इज अ रेडियो मैगजीन. लाइक हम FM पे सुनते हैं कि अभी आप सुनने वाले हैं एक स्टोरी, उसके बाद आप सुनेंगे एक सॉन्ग, और उसके बाद आप वेदर की रिपोर्ट सुनेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फॉर्मेट्स दैट इज कॉल्ड रेडियो मैगजीन. दिया हुआ है यहाँ पे रेडियो मैगजीन में, इट कैन बी सॉन्ग, ड्रामा, इंटरव्यू. तो बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेडियो मैगजीन. Ma'am, generally we are doing here in the CIT NCERT program, we are making maximum 15 minutes.
क्योंकि अटेंशन स्पेंड टाइम इज वेरी लेस नाउ डेज. So audio program, I am talking about higher classes. If we are dealing with primary classes, it should go on up to 5 minutes only. क्योंकि जो बच्चों का अटेंशन स्पेंड टाइम है काफी कम होता है, तो 5 मिनट से ज्यादा ऑडियो नहीं बनाना है. और जहां तक मैं फॉर्मेट्स की बात कर रही हूँ, इफ वी आर डीलिंग विद वेरी यंग चिल्ड्रंस, तो उनके लिए वी जनरली मेक लाइक पोएम्स, स्टोरीज. वी शुड नॉट मेक डॉक्यूमेंट्रीज फॉर देम, लेकिन वो बोर हो जाएंगे. अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो वी कैन गिव लाइक विद अ स्टोरी, वी कैन गिव थ्रू अ पोएम ऑल्सो. तो इट शुड बी लाइक इंटरेस्टिंग होना चाहिए अगर छोटे बच्चों के लिए, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग अ रेडियो प्रोग्राम. सॉरी, इट कैन बी थीम बेस्ड ऑल्सो. नेक्स्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूंगी, तो इट्स अ रेडियो फीचर. रेडियो फीचर से जैसे हम जनरली कहते हैं कि उसकी किसी का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, लाइक उसकी आईज बहुत अच्छी हैं, उसकी नोज बहुत शार्प है, उसके हेयर्स बहुत अच्छे, किसी भी एक एट्रीब्यूट की जब हम बात करते हैं, तो दैट इज रेडियो फीचर. लाइक कि एक टॉपिक पे हो सकता है बहुत सारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हों. हो सकता है जो आप टॉपिक चूज करने वाले हैं, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. बट आपको क्या करना है, यू शुड बी इनोवेटिव. आपको ऐसा सोचना है जो किसी ने अभी तक नहीं सोचा है. तो आपको बहुत ही डिफरेंटली यू हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम, लाइक इट शुड बी इनोवेटिव, देयर शुड बी समथिंग न्यू. आपके प्रोग्राम में हो सकता है आप रिसर्च के लिए यू कैन यूज दैट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स. बट आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इनोवेटिव होना है, आपको न्यू सोचना है, तो आप अपने प्रोग्राम में जो आप इनपुट डाल सकें. बहुत सारी मूवीज होती हैं जो पहले भी बनती हैं और फिर दूसरा डायरेक्टर उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से बनाता है. तो वही आपको करना है कि हो सकता है कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट यू हैव टू थिंक समथिंग इनोवेटिव. अभी मैं फॉर्मेट्स कवर करने के बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू राइट फॉर रेडियो, हाउ वी कैन राइट रेडियो स्क्रिप्ट. नेक्स्ट, अभी मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ. रेडियो टॉक में जनरली, इज दिस अ रेडियो टॉक आई एम टॉकिंग टू यू? Is this a radio talk as I am talking to you? No. No. So what is radio talk, sir? It is broadcasting, yes. In radio talk, there should be some expert. Like expert is talking to the anchor. He is giving detailed overview about the program. तो वहाँ पे expert is required है ना radio talk. ये जनरली टॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ ओनली मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं सजेशंस दे रही हूँ. तो दिस इज नॉट अ रेडियो टॉक. और वहाँ ब्रॉडकास्टिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. लिख डिटेल में, रेडियो टॉक रिक्वायर्स अ प्रेजेंटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट. प्रेजेंटर विल इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड इनवाइट द एक्सपर्ट. और इसमें भी रेडियो टॉक में आपको जो मेन चीज याद, ये आपको मिल जाएगी पीपीटी. रेडियो टॉक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाएंगे, जो भी आपका एक्सपर्ट है, तो सबसे पहले यू विल गिव द टॉपिक कि दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑल्सो. At the time of live, at the time of broadcasting, we cannot like कि हम उनको चुप नहीं करा सकते. तो इसलिए we should be aware what he is going to talk about in our broadcasting. तो we should discuss everything before going for recording. तो इसके लिए rehearsal is must. कोई भी आप जो प्रोग्राम बनाएंगे, हमें लगता है कि we are the expert. We can do spontaneously. बट होता क्या है, वाइल वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग, इतना थोड़ा सा प्रेशर होता है हमारे ऊपर. उसमें क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी ना फिनिश करना चाहते हैं. वी जस्ट वांट टू फिनिश, खत्म करो. ये नहीं करना है. इसके लिए आपको एक काम करना है, वो है रिहर्सल. जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, यू विल डू द रिहर्सल ऑल्सो. रिहर्सल आप कैसे करेंगे, आप अपना मोबाइल खोलिएगा, आप उसमें रिकॉर्ड कीजिएगा. और होता क्या है, जनरली जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं ना, अभी मैं कंटेंट से हट गई हूँ क्योंकि आई हैव ओनली 15 मिनट्स. तो जब हम जनरली फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें लगता है बस मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छा बोलते हैं. दिस इज सेम हैपन्स विद द फोटोग्राफ ऑल्सो. लाइक जब हम फर्स्ट टाइम अपना फोटो देखते हैं, तो वी जस्ट थॉट कि बस मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है, बाकी सबका फोटो अच्छा आता है. सेम विद ऑडियो ऑल्सो, सेम विद वॉइस ऑल्सो.
अभी जिप्सी मैम कह रही थी कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वॉइस सबकी अच्छी है, बस हमको क्या करना है, रिहर्सल, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको की पॉइंट्स ही बता रही हूँ अभी, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि आपकी ना वॉइस चेंज हो रही है। आपका मॉड्यूलेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है, मॉड्यूलेशन। आप मॉड्यूलेट कैसे करते हो वाइल यू आर रिकॉर्डिंग। तो हम ना क्या करते हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें ना स्माइलीज बना लेते हैं। अब व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो स्माइलीज बनाते हैं, स्माइली है, सेड स्माइली है। तो उसके लिए भी while we will write our script we will make some smileys, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो हम ना प्रेशर में भूल जाते हैं, स्माइल करना भूल जाते हैं, एक्सप्रेशंस देना भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो यू विल मेक योर स्माइलीज इन योर स्क्रिप्ट। ठीक है, इज दिस फाइन? उसके बाद व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड योर प्रोग्राम इन योर मोबाइल, और आप ना एक ग्रुप बना लीजिएगा सब। एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप एक ग्रुप बनाइएगा, उसके बाद आप आपस में शेयर कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीडबैक। आप एक दूसरे को फीडबैक दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है, कि मैम थोड़ा सा ना आपने फास्ट बोला, मैम थोड़ा सा क्लियर नहीं थे वर्ड्स, ये दीज टाइप्स ऑफ फीडबैक विल कम, और जो जेन्युइन होंगे एकदम। तो आप उस चीज को सोचेंगे नहीं ठीक का है, आई विल डू इट अगेन, आई विल डू द प्रैक्टिस, आई विल डू द रिहर्सल, एंड आई विल गिव माई बेस्ट while I will going for the recording। जब आप स्टूडियो में आएंगे तो आप 100% यू विल बी रेडी। तो आप सबको ग्रुप बनाना है, ग्रुप ऑलरेडी आई थिंक बना हुआ होगा आपका, तो उसमें शेयर करना है आपका जो भी टॉपिक होगा। यू विल डिसाइड द टॉपिक, यू विल राइट द स्क्रिप्ट, you will put the emojis also, and you will do the rehearsal. These are some steps before going for the recording. एक और फॉर्मेट रह गया है, that is vox populi. It's a French word. Its meaning is voice of the people. लोगों की आवाज। अब इसमें टीचर्स कैसे डील कर सकते हैं? जनरली क्या होता है कि हम ग्राउंड में जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें टीचर कैसे इस फॉर्मेट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दे कैन गो इन टू द क्लासरूम, दे कैन गो टू द स्कूल ऑल्सो, दे कैन रिकॉर्ड द स्टूडेंट्स वॉइस। लाइक यू कैन टेक वन टॉपिक कि व्हाट इज योर जो नॉलेज है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस टॉपिक, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक। यू कैन फ्रेम सम क्वेश्चंस लाइक दिस एंड यू कैन आस्क टू द स्टूडेंट्स। आप उन सबको जो आपका स्टूडेंट की जो नॉलेज है उस टॉपिक पे, यू विल गेट टू नो बाय आंसरिंग दैट क्वेश्चन। ही और शी विल गिव द आंसर, यू विल गेट टू नो द कि उसका जो लेवल है वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, उससे आगे यू कैन मेक द प्रोग्राम। तो वॉइस ऑफ द पीपल की जगह वी कैन से वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, फिर रियल सिचुएशन में वी आर गोइंग to record these things, and in studios what we will do, we will narrate the program about the program, and we will mix down the program. So this is the format which we call vox populi, voice of the people. Like generally we can take price hike क्या है, जो ये जनरल टॉपिक्स लिए हुए हैं। जहाँ हम एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो वी विल टेक दैट सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन टॉपिक्स ऑल्सो। अभी I have talked about formats of radio program. Next is writing for radio. Writing for radio, your script must sound. Script must sound means you have to use onomatopoeic words. Onomatopoeic मतलब ध्वनि अलंकार, हिंदी में इसको बोलते हैं हम ध्वनि अलंकार। आपको अपनी स्क्रिप्ट में ऐसे वर्ड्स को अकोमोडेट करना है जिनसे साउंड्स का आभास हो, जिनसे साउंड्स जनरेट हो पाए। लाइक आई विल टेक एन एग्जांपल, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, और ये है विद ओनोमोटोपोइक वर्ड्स। द कप फेल फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं या जो कंटेंट एक्सपर्ट हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं,
उनको ये आइडिया नहीं है कि द कप फेल फ्रॉम द टेबल, दैट इज ओके, बट इट वॉज ब्रोकन और नॉट, या इट वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट कैन बी मेड ऑफ ग्लास ऑल्सो, इट कैन बी मेड ऑफ स्टील ऑल्सो. तो इन द नेक्स्ट सेंटेंस द कप फेल फ्रॉम द टेबल एंड ब्रोक. Here producer is very clear. It was made of by glass only. That's why it's broke. तो यहाँ पे जो sound effects of broken glass can be added in your program. तो यहाँ पे आपके पास scope है. यहाँ पे editor के पास option है. He can put the effect of broken glass sound effect. Is this clear? Is this clear? Okay. Next है there were birds sitting on the tree. So okay. Birds were sitting on the tree, but might be they were silent. हो सकता है कि वो chirping कर रही हो लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही हो. तो हमें जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, while we are writing for radio, what we are doing, we are accommodating some sound effects, some onomatopoeic words. Like chirping is here onomatopoeic word. The bird sitting on the tree chirped so sweetly. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है और एडिटर के पास ऑप्शन है, he or she can add the chirping sound of birds. तो सेम कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं. रिवर फ्लोज बाय माय विलेज, हो सकता है काफी दूर बह रही हो, मेरे पास आवाज नहीं आ रही हो, लेकिन विद दिस सेंटेंस इट विल बी वेरी क्लियर कि मैं आई कैन लिसन द एल्यूरिंग साउंड ऑफ रिवर. तो ये एक जब हम ऑडियो के लिए लिखते हैं तो ट्राई टू राइट ओनोमोटोपोइक वर्ड, जहाँ पे आप ध्वनि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ वी कैन यूज साउंड इफेक्ट्स. Beethoven was a great musician, that is okay. बट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं कि पियानिस्ट थे या क्या बजाते थे, तो माइट बी प्रोड्यूसर और जो एडिटर है दे विल बी कंफ्यूज्ड, दे विल एड द ड्रम ऑल्सो. सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि अगर Beethoven was a great musician that is okay, लेकिन वो क्या बजाते थे, Beethoven was a great pianist. ठीक है. तो यहाँ पे हमें वैसे लिखना है जिससे हमारे प्रोड्यूसर जो एडिटर हैं या जो कंटेंट डेवलपर हैं, दे दे विल बी वेरी क्लियर कि हमें क्या साउंड इफेक्ट का एक बहुत मेन रोल होता है. साउंड इफेक्ट्स के बिना वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ रेडियो प्रोग्राम. हमें म्यूजिक भी बहुत जरूरी है. म्यूजिक जिस टाइम की हम बात करें, एक मैम का क्वेश्चन था जिप्सी मैम से कि हाउ वी कैन शो इमोशंस इन ऑडियो. इसके लिए मैं तभी सोच रही थी मैं थोड़ा सा आंसर करूंगी. एक्चुअली क्या है कि वी हैव ओनली वन टूल, दैट इज माइक्रोफोन. अब आपके मॉड्यूलेशन पे डिपेंड करता है. एक से है, इफ यू स्माइल विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड इज गोइंग टू स्माइल विद यू. इफ यू विल क्राई विद द माइक्रोफोन द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्राई विद यू. तो इट डिपेंड्स ऑन योर मॉड्यूलेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. म्यूजिक तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं आपके बोलने में एनर्जी है कि नहीं. आपके बोलने में, जैसे अगर कोई सैड बात करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा इमोशंस आर रिक्वायर्ड. इसीलिए मैंने कहा कि रिहर्सल इज मस्ट. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, इसलिए मेरी ब्रीदिंग का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि मैं इतना फास्ट कभी बोलती नहीं हूँ. मैं सोच रही हूँ सारा कवर कर रही हूँ. यस, कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा है बता देने चाहिए. जी, while we are writing for radio, we are writing for the ears, not for eyes. हम किसके लिए लिखते हैं? ईयर्स के लिए. हम आईज के लिए नहीं लिखते हैं. तो हम विजुलाइज कराते हैं थ्रू द ईयर्स, नॉट थ्रू द आईज. तो आपको जैसे अभी जिप्सी में भी एग्जांपल दे रही थी, यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग. लाइक इफ समवन इज कमिंग हियर, तो वी हैव टू डिस्क्राइब दैट सीन. इन वीडियो वी कैन सी इजीली कि समवन इज कमिंग इन द रूम, but in audio we cannot see someone is entering or not, gypsy madam is sitting here or not. So we have to describe everything, like gypsy madam is sitting and she is wearing this kind of clothes. तो ये हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी दिखानी है. तो ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, हम ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं. जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको ना हम ब्रैकेट में लिखते हैं और वैसे साउंड इफेक्ट्स को हम ऐड कर देते हैं. जैसे if someone is coming, तो what we will do, we will add some footsteps, right? और इसमें भी if we are moving,
तो वी हैव टू मूव, लाइक इन ऑडियो वी हैव टू डू एवरीथिंग, वी हैव टू डू एवरी एक्शन ऑल्सो। लाइक हमें ऑडियो में लगता है कि हम एक जगह पे बैठ के और बस रिकॉर्ड कर देंगे, उससे जो एक इमोशंस की बात कही थी वो नहीं आ पाते। तो इसके लिए जब आप नमस्ते करेंगे ना, जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो नमस्ते करेंगे तो सबको हाथ जोड़ के ही नमस्ते करना है, नमस्ते। उससे क्या होता है, एक्सप्रेशंस, उससे क्या होता है, इमोशंस आते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि वाइल यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड यू विल नॉट सिट जस्ट सिंपली लाइक दिस, आपको एक्शंस करने हैं, एक्शंस के साथ योर एक्सप्रेशन विल कम, योर इमोशंस विल कम ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, सबको हाथ खुले रखने हैं, बांध के किसी को नहीं खड़ा होना है। और जनरली कुछ पॉइंट्स हैं, जनरली पूछते हैं कि हमें आइडियली कितना डिस्टेंस रखना चाहिए माइक्रोफोन से। तो आंसर के लिए 6 इंचेस है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर थ्रो, आपकी वॉइस का क्या थ्रो है। इट डिपेंड्स ऑन योर जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। ये ऐसे नहीं डिपेंड करता मैंने यहाँ 6 इंचेस नाप लिया मैं नहीं बोल पा रही, मेरी आवाज़ क्लियर है, नहीं है, अब मुझे पता है मेरी आवाज़ यहाँ से ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो वी हैव टू बी लाइक, हमें खुद को जज करना है। इसलिए आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग योर प्रोग्राम। जितनी बार आप रिहर्सल करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, इंफॉर्मेटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। वाइल वी आर राइटिंग फॉर रेडियो वी शुड बी क्रिएटिव ऑल्सो। कुछ मतलब जैसे 1-2 एग्जाम्पल पढ़ूंगी। लाइफ इज वेरी बिजी एंड वी हैव नो टाइम, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। इफ वी विल राइट क्रिएटिवली, व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम इवन टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो हमें थोड़ा सा क्रिएटिवली लिखना है जो भी लिखना है। राइटिंग फॉर रेडियो इज अ स्किल, राइटिंग फॉर रेडियो इज राइटिंग विजुअली फॉर द ईयर्स। तो यहाँ पे हम विजुअली लिखते हैं ईयर्स के लिए, नॉट फॉर आईज। एक्चुअली टाइम बहुत कम है, मुझे बार बार बोला जा रहा है कि वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। यस सर, आई एम टेकिंग सेशन। स्टूडियोज में क्या होता है, हमारे जो जनरली स्टूडियोज हैं, जब आप स्टूडियो विजिट करेंगे तो ये अकॉस्टिकली ट्रीटेड हैं, क्योंकि बाहर की जो साउंड है साउंड प्रूफ होने चाहिए। लेकिन हमारे घर पे जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक मिनट, जब हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक वन प्लेस जहाँ पे बहुत साइलेंस हो, जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। जब आप घर में, सबके पास स्टूडियोज नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जब आप फोन में कंटेंट क्रिएट करेंगे तब के लिए। आपके मोबाइल में हाउ यू कैन क्रिएट ई कंटेंट इन योर मोबाइल फोन। तो उसके लिए रिकॉर्डर सबके पास है मोबाइल फोन में। डू यू हैव रिकॉर्डर इन योर मोबाइल फोन्स? यस, ओके। तो उसमें क्या करेंगे आप, आपको अपना मोबाइल का रिकॉर्डर खोलना है और अपने घर में एक ऐसा साइलेंस प्लेस देखना है जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। अगर डिस्टरबेंस है तो व्हाट वी विल डू द रिकॉर्डिंग इन नाइट, लाइक 10 o'clock के बाद, 10 PM के बाद वी कैन रिकॉर्ड आवर प्रोग्राम। और उसके लिए भी एक्चुअली हमें वी हैव टू गिव आवर बेस्ट while we are recording our program। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये भी बता दूं वो भी बता दूं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक तो साइलेंस प्लेस चूज करना है, और आपको क्या करना है कि जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो जो आपके घर में फैन जो चल रहा है या जो AC जो चल रहा है वो भी आपको बंद कर लेना है। आप कूलिंग कर लीजिए उतनी पहले।